हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन डिज़ाइन वर्ल्ड। जैसे अभी तक हमने सीखा कि स्केच यूज़र इंटरफेस क्या होता है हमारे सॉल्वर्स के अंदर, कैसे हम चेंज कर सकते हैं, सेटिंग्स क्या होती है। तो यानी बेसिक चीज़ें हमने सीख ली है। अब आगे चलते थोड़ा सा कि स्केचिंग्स में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। कि अगर नॉर्मली कोई भी वॉल्यूम ऑब्जेक्ट बनाना है तो सबसे पहले हमें स्केचिंग आनी जरूरी है, ठीक है। उसमें टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। देन नेक्स्ट सेशंस में फिर हम देखेंगे कि वॉल्यूम कैसे बनते हैं उसके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्केचिंग से। स्केचिंग के ऑप्शन समझते हैं, एक एक टूल समझते हैं, एक एक पॉइंट समझते हैं। Today I am covering all this topic. Under that, first of all, introduction to user interface. In our last day session, we already covered the user interface. So I just giving the brief about user interface. Then just go for the next option, that was fundamental of sketching. What was the fundamental of sketching? Then next option is SolidWorks sketching tools. So we cover all the sketching tools of under SolidWorks. So I just go to my SolidWorks, double click on my blank area, or you can go and start with here. You can use the shortcut key, that was Control N. You can go here, go for file and click new. So this is all this way you can start your SolidWorks file. You can start your design. Okay. By default you have three plane: front, top and right. Many of the designer have, or many of the student have confusion regarding the plane, which plane I was select. So my orientation make as per my requirement. So whenever you start your object, or whenever you start your 3D model to create, first of all you need to clear all the fundamental, that whenever you see your object with your left hand, then select your front plane. And whenever you show your object by right side, then select right plane. Maybe you don't have any confusion regarding the top plane. So this is the fundamental to select your plane. First of all, you have to know that by default all the plane are hide. If you need to select, or if you need to unhide the plane, select all the plane, right click and click on show option. If you need to show only some specific plane like front and top, then select front and top, click show. Then you can see only front and top is visible in graphic area. With the help of symbol of plane, you can identify which plane are hidden and which plane are visible. Okay, when you select all the plane, under that half or some are hidden, some are so then what happened, you got both the option, that was hide and show. If you click on show, then all the plane are in visible form. If you need to hide all the plane, then right click and hide all. Okay, so sketch. So what I do, I just select any plane to start to explain the sketch command. So here I just select the front plane, click on sketch, or you can go here, select the sketch option here. So I just select the sketch option. Then जैसे मैंने स्केच कमांड सेलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट योर फ्रंट प्लेन गोज टू नॉर्मल. आपका फ्रंट प्लेन ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम. इफ़ यू नीड कि आप वेन एवर यू जस्ट सेलेक्ट एनी फेस, एनी प्लेन एंड अगेन इज गोज टू नॉर्मल, देन यू हैव टू सेट अ सेटिंग. ओके, जो ऑलरेडी सॉलिडवर्क्स यूज़ कर रहे हैं उन्हें पता है कि सेकंड टाइम ऑटोमेटिकली नॉर्मल नहीं होता. उनके लिए सेटिंग्स होती है आपकी नॉर्मली, कि सेटिंग्स में गया, सिस्टम ऑप्शन, सिलेक्ट स्केच, देन यू नीड टू चेक दिस ऑप्शन, दैट वाज ऑटो रोटेट व्यू नॉर्मल टू स्केच प्लेन और स्केच क्रिएशन एंड स्केच एडिट. So this option you need to check. So that's the reason whenever you select second time any plane or any face, then automatically goes to normal. Okay, if you are not selected that option, then second time when you, like, let me show. If I make some object, like I just select make a rectangle, make a extrude or click OK, and again what I do, I just select a face, click on sketch option. Now it goes to normal. If I uncheck this option, like I just go to sketch and uncheck this option, मैंने uncheck किया, then मैंने face select किया and then I just click on sketch, तो what happened, it not goes to normal. ये normal नहीं होगा आपका. Okay, so maybe it's clear what this option does. Okay, and open a new file. So again मैंने कोई front plane या कोई भी plane मैंने select किया, then
I just started to make a sketch. Fundamental of sketch. स्केचिंग की फंडामेंटल में सिर्फ आपके 3 रूल्स होते हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लियर कि ये 3 ऑप्शन क्या क्या होते हैं. पहला अंडर डिफाइन, जो आपको चीज़ देखने मिलती है. देन फुली डिफाइन, देन ओवर डिफाइन. अंडर डिफाइन के आगे मैंने कुछ कलर लिखे हुए हैं, दैट वाज ब्लू. फुली डिफाइन के आगे कलर लिखा हुआ है ब्लैक. ओवर डिफाइन के आगे कलर लिखा हुआ है येलो ऑब्लिक रेड. ओके, दैट मीन्स कि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, अंडर कंस्ट्रक्शन होते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपको वो ब्लू कलर ही दिखाई देता है. When you make any sketch with full parameters like providing dimensions, providing relations and all, आपने जैसे relation and dimension दे दिए, then automatically goes to black. ठीक है, black means fully defined means कि आपने fully parametric उससे create कर दिया है, यानी provide कर दिया है. Over defined means आप over definition दे रहे हो किसी भी object को. ठीक है, यू नो कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, एंगल 90 डिग्री होता है. इन दैट केस कि आपने चारों की चारों डायमेंशन देने की कोशिश की तो वो ओवर डिफाइन में चला जाएगा. ठीक है, व्हाट आई डू, आई जस्ट गो हियर, लेट मी शो कि बाय डिफॉल्ट व्हेन यू मेक एनी ऑब्जेक्ट, लाइक आई जस्ट गो एंड मेक अ रेक्टेंगल, तो वो बाय डिफॉल्ट आपका अंडर डिफाइन ऑब्जेक्ट ही दिखाता है, ब्लू कलर. ठीक है, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट कलर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर कोई दूसरे सिस्टम में आप वर्क करने जाओगे या दूसरे फॉर्म में दूसरी कंपनी में आप वर्क करने जाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यही कलर देखने मिलेंगे. ठीक है, अगर आपको हैबिट पड़ गई कि आपने कोई डिफ़ॉल्ट कलर चेंज करके आपने कोई और कलर यूज़ किए, देन मे बी माइट बी केस कि आप कन्फ्यूज हो जाओ इस केस में. ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं, आप डिफ़ॉल्ट चेंज कर सकते हो. सो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ब्लू दिखेगा. अब मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे डिफ़ाइन करना हो तो कैसे डिफ़ाइन करूँ. सॉलिडवर्क्स को इतना पता है कि सॉलिडवर्क्स का जो ओरिजिन पॉइंट है उसकी वैल्यू 0,0 है. तो जब भी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करना हो तो ओरिजिन से ही आपको क्रिएट करना होगा. अगर आप ओरिजिन से क्रिएट नहीं करते हो तो क्या इशू होता है. जैसे मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया, लाइन सेलेक्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये डिफाइन किया कि कितना आपका ऊपर है वो ऑब्जेक्ट. ठीक है, फिर से आई जस्ट सेलेक्ट ए स्मार्ट डायमेंशन, सेलेक्ट अ पॉइंट, सेलेक्ट अ लाइन, प्रोवाइडिंग हॉरिजॉन्टल डायमेंशन. जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा तब तक वो पुटअप नहीं होगी. ठीक है, मैंने क्लिक किया, मैंने डायमेंशन दिया और ओके कर दिया. मुझे डायमेंशन जब भी एडिट करनी, डबल क्लिक ऑन डायमेंशन एंड प्रोवाइडिंग डायमेंशन, जो भी मुझे डायमेंशन देना है इस पर डबल क्लिक किया, मुझे 15 चाहिए थी. ओके, अब मैंने अभी तक रेक्टेंगल की पोजीशन डिफाइन की है. देन अब रेक्टेंगल डिफाइन करूंगा कि मुझे 80 चाहिए, ये मुझे 90 चाहिए, या मुझे ये 60 चाहिए. जितना भी मुझे चाहिए वैल्यू, मैंने उतना वैल्यू प्रोवाइड करके डिफाइन कर दिया मैंने. जब भी आप क्रिएट करो बाय डिफ़ॉल्ट आप ओरिजिन पॉइंट, यानी पहला पॉइंट ओरिजिन सेलेक्ट करो, देन आप क्रिएट करो जो भी ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना हो. ओके, इससे क्या होगा कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए आपको 2 चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती है ज्योमेट्री की. फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन, देन ज्योमेट्री. पोजीशन एंड ज्योमेट्री. अगर आप ओरिजिन से बनाते हो तो आपको पोजीशन की वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पोजीशन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि उसे डिफाइन करना पड़ेगा. आपको बाय डिफ़ॉल्ट से ज्योमेट्री डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, जैसे मैंने ओरिजिन से बनाया तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 लाइन मेरी ब्लैक आ रही ऑटोमेटिकली. मैंने अभी तक कोई डायमेंशन नहीं दी है. क्यों? क्योंकि इसमें पहले से डेफिनेशन सेट है कि ये हॉरिजॉन्टल है या ये वर्टिकल लाइन है, इसलिए. ठीक है, क्योंकि मैं इसको मूव ऑन नहीं कर सकता ऊपर या नीचे. ठीक है, आई जस्ट प्रोवाइडेड डायमेंशंस, लाइक मैंने यहाँ पे 70 दिया, यहाँ पे मैंने 80 दिया. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया. यानी मुझे 2 डायमेंशंस कम देने पड़े क्योंकि मुझे पोजीशन डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रही, क्योंकि मैंने ओरिजिन से क्रिएट करना स्टार्ट किया. तो पहला रूल आपका यही है कि जब भी आप अंडर डिफाइन ऑब्जेक्ट को डिफाइन करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी चीज़ें क्रिएट करना स्टार्ट करो ओरिजिन से ही स्टार्ट करो. देन अगर डिफाइन हो गया, देन यू जस्ट गो एंड प्रोवाइड मोर डायमेंशंस, लाइक मुझे 70 चाहिए, देन ऑटोमेटिकली इट गोज टू ओवर डिफाइंड टर्म. ठीक है, ऑटोमेटिकली ओवर डिफाइन में वो चला जाएगा. अब आपको ये डायमेंशन ड्रिवन स्टेट में छोड़ना है या ड्राइविंग स्टेट में, वो आपकी मर्जी है. ड्रिवन स्टेट में छोड़ दूंगा तो वो ग्रे आउट दिखेगी आपको. अगर इसी डायमेंशन को मैं ड्राइविंग में पुटअप करूँ, आई जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन अनचेक ड्रिवन ऑप्शन, तो ऑटोमेटिकली गोज टू ओवर डिफाइन. आपका स्टेटस बार भी आपको शो करने लग जाएगा कि ओवर डिफाइन स्टेट में. डे 1 में मैंने ऑटोमेटिक कुछ बताया था कि ये आपका स्टेटस बार होता है जहाँ पे आपकी यूनिट वगैरह या आपकी कंडीशंस वगैरह दिखती है. अब एडिटिंग मोड में स्केच 1 में तो ऑटोमेटिकली एडिटिंग मोड स्केच 1 लिखा हुआ आ रहा है. ओवर डिफाइन कंडीशन में तो ओवर डिफाइन लिखा आ रहा है. आई जस्ट सेलेक्ट 70 एंड डिलीट फ्रॉम द कीबोर्ड की, तो ऑटोमेटिकली फुल्ली डिफाइन लिखाएगा क्योंकि डिफाइन है अभी. तो अंडर डिफाइन,
यानी अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी आप वर्किंग प्रोग्रेस में हो। फुल्ली डिफाइन यानी आपने फुल्ली पैरामीटर्स प्रोवाइड कर दिए। ओवर डिफाइन, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने ज़्यादा डायमेंशंस दे दिए तो ओवर डिफाइन में चला जाता है। सो हियर ओके, मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। अब मुझे इसे डिफाइन करना है। ये मेरा 20 है, दिस इज माई 20, दिस इज माई 20, this also my 20 and this is also my 20। ओके, मैंने ये डिफाइन कर दिया कि ये मेरा 30 है, ये भी मेरा 30 है, ये गैप मेरा 20 है। लाइन सेलेक्ट किया, ठीक है। जूम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्क्रोलिंग, आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। लाइन सेलेक्ट किया, ये लाइन सेलेक्ट किया और 20, ठीक है। ये मेरा 30 है, ओके। मेरा ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया है, ठीक है। बट इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट मुझे बहुत सारे डायमेंशंस प्रोवाइड करने पड़े, नंबर्स ऑफ डायमेंशंस मुझे प्रोवाइड करने पड़े, ठीक है। इफ आई वांट टू रिमूव सम एक्स्ट्रा डायमेंशंस, कि मुझे एक्स्ट्रा डायमेंशंस रिमूव करनी है, सो व्हाट आई डू कि मुझे जो कॉपीड डायमेंशंस है, जो आपके रिपीट डायमेंशंस है, वो मैं इजीली रिमूव कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ रिलेशंस। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग डायमेंशंस आई जस्ट सिलेक्ट अ रिलेशन, मैं वहाँ पर रिलेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ, ओके। आपका रिलेशंस और डायमेंशंस का बीच में जो कनेक्शन है वो रेसिप्रोकल्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि मुझे ये ऑब्जेक्ट वापस क्रिएट करना है, इसमें मैंने बहुत सारे डायमेंशंस यूज़ किए तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। आई जस्ट मेक अगेन सेम ऑब्जेक्ट, मे बी नीचे वाली लाइन थोड़ी टिल्ड बन गई, कोई इशू नहीं है। और इस लाइन पे मैंने क्लिक किया और मेक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आई जस्ट सिलेक्ट कि ये वाली लाइन विद प्लस कंट्रोल, ये एंड ये 20 था, तो मैंने सब चारों लाइन को सिलेक्ट किया, पांचों लाइन को। एंड आपको लेफ्ट हैंड साइड प्रॉपर्टी बार में ऑटोमेटिकली आपको रिलेशंस देखने मिलेंगे, ठीक है। जो पॉसिबल रिलेशंस होंगे वो सिर्फ वही आपको शो होंगे, यानी वही आपको सजेशंस में आएंगे, आपको सारे रिलेशंस नहीं दिखेंगे की बार में। आई जस्ट सेलेक्ट ऑन इक्वल, मुझे इक्वल करना था, मैंने इस पर क्लिक किया, ये लाइन प्लस ये लाइन भी मेरा इक्वल है, दोनों को सिलेक्ट किया, इक्वल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन मेरी कोलिनियर है, ठीक है, तो मैंने कोलिनियर पे सिलेक्ट किया। देन आई जस्ट गो एंड मेक अ डायमेंशंस कि मुझे ये 20 क्रिएट करना है, ये मुझे 30 क्रिएट करना है, ये मुझे 20 चाहिए और ये मुझे 30 चाहिए। तो मिनिमम 4 डायमेंशन में आपका ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया। यानी जब आप मैक्सिमम रिलेशंस ऐड करते हो, यानी रिलेशन जितने ऐड करोगे उतने ही आपको डायमेंशंस कम देने पड़ेंगे, जितने रिलेशंस कम यूज़ करोगे उतने ही डायमेंशंस आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये रेसिप्रोकल कनेक्शन है आपस में इनके। अगर मैं यहाँ पे कोई रिलेशन डिलीट कर दूँ, जैसे आई जस्ट सेलेक्ट डिलीट दी इक्वल साइन, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको एक डायमेंशन और ऐड करनी पड़ेगी, यानी जितने कम रिलेशन आप यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा डायमेंशन देने पड़ेंगे। आप डायमेंशन को जीरो नहीं कर सकते, आपको एटलीस्ट एक डायमेंशन तो रिक्वायरमेंट होगी। अगर इस आप रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाओगे तभी एक डायमेंशन तो आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आपको कोई डायमेंशन रिलेशन चेक करने कितने रिलेशन या कितने डायमेंशन आपने यूज़ किए, जस्ट सिलेक्ट डिलीट एंड डिस्प्ले रिलेशन ऑप्शन। यहाँ पे आपने जैसे सिलेक्ट किया तो जितने भी रिलेशन आपने यूज़ किए सारे के सारे रिलेशन आपको यही दिखने लग जाएंगे। जैसे जैसे आप रिलेशन पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली हाईलाइट भी होगा आपका ग्राफिक एरिया में कि वो रिलेशन कौन सा है, ठीक है। आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो अपने रिलेशंस को। ऑल इन द स्केच डैगलिंग रिलेशन, अगर डैगलिंग होगा तो दिखाएगा। ओवर डिफाइंड, अगर कुछ चीज़ें ओवर डिफाइंड है तो वो सारे रिलेशंस यहाँ पे आएंगे जो रिजॉल्व नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो या खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। सो दिस इज़ द फंडामेंटल ऑफ योर स्केच। तो आप जितने ज़्यादा रिलेशंस यूज़ करोगे उतने ही कम डायमेंशंस में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एक रिकॉल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लियर अबाउट द अंडर डिफाइंड टर्म, over defined and fully defined term, कि whenever you just start your object that make under defined, when you provide the dimensions or relation it goes to define term, ठीक है। आप जैसे ही ज़्यादा dimensions provide करोगे automatically it goes to over defined। डिफाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी ऑब्जेक्ट आप जब भी क्रिएट करो, कोई भी डिज़ाइन स्टार्ट करो, पहला पॉइंट आपको ओरिजिन पे क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए 2 चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती है, पोजीशंस एंड ज्योमेट्री डिफाइन करनी पड़ती है।
अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट करोगे तो पोजीशन डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ आपको ज्योमेट्री डिफाइन करनी पड़ती है। ज्योमेट्री डिफाइन करने के लिए भी आपको दो ऑप्शंस होते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन डिफाइन कर लो, और सेकंड विद द हेल्प ऑफ रिलेशन एंड डायमेंशन आप डिफाइन करो। जितने ज़्यादा रिलेशन यूज़ करोगे उतने कम डायमेंशन आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे डिफाइन करने के लिए। सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ योर स्केच। सो स्मार्ट डायमेंशंस ऑटोमेटिकली आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग डायमेंशंस पिकअप कर लेता। फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक रेक्टेंगल एक ओरिजिन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बनाया, ठीक है। मैंने स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक किया, ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक किया, इस कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक किया, अभी ये अलाइन डायमेंशन दिखा रहा है। जैसे मैं इसको माउस को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा वर्टिकल डायमेंशन, ठीक है, ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, तो स्मार्ट डायमेंशन ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है जैसे जैसे आप अपने माउस को मूव ऑन करते हो या मूव करते हो, ठीक है। या फिर आप मैनुअल डायमेंशंस भी यूज़ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बेस लाइन, चैन, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो। मैंने क्या किया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके ये पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने रिलेशन लगा दिया कॉन्स्टेंट, ऑटोमेटिकली ओरिजिन पे चला गया। तो ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी स्टार्टिंग एज ए फ्रेशर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप ओरिजिन से स्टार्ट करो। अगर आपने पहले यूज़ किया है देन आपको कोई इशू नहीं होगा, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। सो कमांड के रिलेटेड, जैसे लाइन, आपको पता है लाइन क्या होती है, सेंटर लाइन क्या होती है, मिड लाइन क्या होती है। अगर मिड लाइन क्रिएट करो तो पहला पॉइंट जहाँ भी बनाओगे वो मिड पॉइंट होता है, देन उसके दोनों साइड आपको इक्वली लाइन क्रिएट होती है। रेक्टेंगल, टाइप ऑफ रेक्टेंगल, आपके 5 टाइप के रेक्टेंगल होते हैं, कॉर्नर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल। ये आप खुद क्लिक कर करके क्रिएट करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ शेप होती है बाय डिफॉल्ट जो आपके पास गिवन होती है, स्ट्रेट स्लॉट, सेंटर पॉइंट स्लॉट, 3 पॉइंट, सेंटर आर्क, तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट ए सर्कल, मुझे इस पॉइंट पे सर्कल बनाना है, मैंने पॉइंट क्लिक किया, फिर मैं सर्कल बना रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट व्हेन यू प्रोवाइडिंग द डायमेंशन टू सर्कल इट गोज टू डायमीटर, वो ऑटोमेटिकली डायमीटर पिक करता है। अगर आपको रेडियस देनी है तो आप रेडियस भी दे सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो सर्कल को डायमीटर पिक करता है और आर्क को रेडियस पिक करता है। आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, तो आर्क भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर आर्क को कोई एंगल पे आपको डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करोगे, आई जस्ट सिलेक्ट ए लाइन, मैंने इस पॉइंट से ओरिजिन पे पिक किया और यहाँ से इस पॉइंट पे क्लिक किया, अब मुझे सिर्फ आर्क चाहिए। अगर आप लाइन क्रिएट करोगे तो लाइन भी आपका आर्क का यानी स्केच का पार्ट बन जाता है। अगर आपको लाइन नहीं रिक्वायरमेंट है तो व्हाट यू नीड टू डू, सिलेक्ट योर लाइन, सिलेक्ट दिस ऑप्शन, मेक एज ए कंस्ट्रक्शन, तो ऑटोमेटिकली वो अंडर कंस्ट्रक्शन में चल जाएगी। इफ़ यू ऑलरेडी स्टडी अबाउट द मैकेनिकल ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ED एंड ऑल, देन यू नो कि कंस्ट्रक्शन लाइन हमें कहाँ यूज़ करनी, कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वो आपके ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होती है। आई जस्ट मेक अ कंस्ट्रक्शन लाइन, नाउ आई जस्ट गो एंड प्रोवाइडिंग द डायमेंशंस कि मुझे 150 चाहिए कि 160 चाहिए, जो भी मुझे डायमेंशन चाहिए मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने लाइन पे क्लिक किया, मैं क्रिएट करते समय भी ये सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कंस्ट्रक्शन ही बनानी है या इन्फिनाइट लाइन बनानी है, मिड पॉइंट, जो ऑप्शन मुझे कॉम्बिनेशन में यूज़ करनी है मैं कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकता हूँ। मुझे कंस्ट्रक्शन बनानी है ओरिजिन, और मैंने एक वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट किया, ये और ये पॉइंट सेलेक्ट किया और इसके बीच में मैंने डायमेंशन प्रोवाइड कर दी, दैट वाज 10 डिग्री। लेट मी चेक अभी तक डिफाइन क्यों नहीं हो। ओके, रेडियस रिमेनिंग है, स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट दी आर्क, ऑटोमेटिकली रेडियस आएगा जब आप आर्क सेलेक्ट करते हो। मुझे 50 देना है ये, तो आपका 50 ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, ये डिफाइन हो गया, फुल्ली डिफाइन। ओके, तो दिस वे यू कैन क्रिएट योर डायमेंशंस ऑल्सो, मेक योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्लॉट पॉलीगन बना सकते हो, कितना आपको साइड प्रोवाइड करना है, 6-7। बाय डिफॉल्ट ये रेगुलर पॉलीगन ही क्रिएट करता है आपका इंस्क्राइब या सर्कमस्क्राइब सर्कल के थ्रू, ठीक है। जैसे मुझे 6 टाइप साइड बनाना है तो 6 पहले से क्लिक है, टाइप है, तो ये 6 साइड आपको बना के दे देगा। यहाँ पे अगर मैंने 8 कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये एडिट हो जाएगा जो पहले से ओपन है, ठीक है। मुझे वापस बनाना है, मैंने फिर से बना दिया 8, मैंने फिर से कमांड सेलेक्ट किया, मुझे 8 नहीं एक्चुअली 5 ही चाहिए, पेंटागन चाहिए, 5 लिया, आपका पेंटागन बन गया। तो जैसा आपको क्रिएट करना उतने साइड आप प्रोवाइड कर सकते हो, डिफाइन आप कर सकते हो, डिफाइन के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है। ओके, ऐसे आप स्प्लाइन बना सकते हो, इलिप्स। व्हेनेवर यू नीड टू डिफाइन योर स्प्लाइन, देन you have to define all the fit point, you have to define all the fit point with respect to origin। आपको हर एक fit point डिफाइन करना पड़ेगा horizontal and vertical way में, then आप अपने इसको डिफाइन कर सकते हो,
ठीक है। स्प्लाइन डिफाइन करने की तभी होती है जब आप इसके फिट पॉइंट आप डिफाइन कर दो, ठीक है। और जैसे मैंने लास्ट डायमेंशन प्रोवाइड की, ऑटोमेटिकली ये डिफाइन हो जाएगा आपका स्प्लाइन। ओके, तो ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, मैंने रेक्टेंगल बनाया, आपको फिलेट वगैरह ऐड करना है, आप फिलेट और चैम्फर यूज़ कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन योर डिज़ाइन जैसा भी और डिज़ाइन है उस अकॉर्डिंग आप फिलेट वगैरह ऐड कर सकते हो या चैम्फर ऐड कर सकते हो। डबल क्लिक करो, वैल्यू ऐड कर लो, 20 चाहिए, 30 चाहिए, जितना भी आपको प्रोवाइड करना हो उस अकॉर्डिंग आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। Then if you need to add some text and all, then make a center line, select your text. First you need to select your curve, your spline line, whatever. Then whatever you need to add, just type that word, like design, like design. If you want कि आपको visible नहीं है, then just uncheck the document font and go to select your font option and make it visible. Make it visible, ठीक है, and okay. So this way you can easily type your text, ठीक है। Whenever you select any command, then there is a option arrived that was help. ऑटोमेटिकली कोई भी कमांड आप ओपन करते हो तो ऑटोमेटिकली हर एक कमांड के अंदर आपका हेल्प का ऑप्शन होता है। बाय डिफॉल्ट when you select any command, the property bar is open, property manager is open of that command, and the feature manager goes to your graphic area. I already covered this point in my first day training. Then trim option, you have different way of trim. Like मैंने rectangle बनाया, first you need to clear the fundamental of trim and difference between trim and delete. I just selected trim. When you select any line, if you did not want the whole line, then click the delete option with the help of keyboard. Then the whole line disappear. Okay, if you need कि आपको उसके कुछ portions आपको requirement है, then what you need to do, just go to trim option, trim entity option. आप इसमें different options है, power trim, corner trim, away, inside trim, away, outside, and trim to the closest. Power trim, ठीक है, आप पावर ट्रिम यूज़ करते हैं। अंडर पावर ट्रिम आपको अपने माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना पड़ेगा, और जो फिर आपको देखो एक लाइन बनती हुई दिख रही है, ये लाइन जिससे भी टच होगी वो ऑटोमेटिकली ट्रिम होगी। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली उस लाइन का एक पर्टिकुलर पोर्शन रिमूव हो गया, यानी वो होल लाइन डिलीट नहीं हुई आपकी। यानी जब भी आपको उस किसी लाइन का पर्टिकुलर पोर्शन रिक्वायरमेंट हो तो आप ट्रिम कमांड यूज़ करते हो। अगर आपको वो पूरी लाइन ही नीड है, देन आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट डिलीट ऑप्शन। तो जैसे ये ऊपर वाली लाइन एक सिंगल लाइन है, ये डिवाइडेड नहीं है, अगर मैं इसको क्रॉस करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है ट्रिम कमांड। अगर कोई लाइन डिवाइड हो रही है विद द हेल्प ऑफ एनी रेफरेंस, देन इट परफॉर्म एज ए ट्रिम ऑप्शन। तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो अपने ट्रिम कमांड को। क्लियर है? सिलेक्ट अ ट्रिम एंटिटी, सिलेक्ट अ कॉर्नर, अगर आपको कॉर्नर क्रिएट करना हो तो। ओके, पावर ट्रिम, देन आई जस्ट सिलेक्टेड ट्रिम टू द क्लोजेस्ट ऑप्शन। ये मैक्सिमम ये ऑप्शन बहुत मोस्टली यूज होते हैं। ट्रिम टू द क्लोजेस्ट में आपको सिंपली क्लिक करना, जो पोर्शन आपको रिक्वायरमेंट है, जो नहीं चाहिए वो आपका रिमूव हो जाएगा। पावर ट्रिम में आपको लेफ्ट की प्रेस करके रखना पड़ेगा आपको माउस का। ओके, कभी कभी चीज़ें क्या होती है कि ट्रिम करने से आपके रिलेशंस या डायमेंशंस भी डिलीट होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, ये एंड ये मैंने इक्वल रिलेशन लगा दिया, डायमेंशंस प्रोवाइड की कि ये मुझे नियर बाय 100 बनाना है, ये मुझे 100 बनाना है, ये साइड 250 एंड माय ऑब्जेक्ट हैज़ बीन डिफाइंड। ओके, मेरा ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया। आई जस्ट सेलेक्ट ट्रिम। जैसे मैं ट्रिम करने जाऊंगा तो कभी कभी चीज़ें क्या होती है कि अंडर डिफाइन में भी चला जाता है ऑब्जेक्ट मेरा, और इट गोज टू अंडर डिफाइन। ठीक है, तो कभी कभी हम ट्रिम ऑपरेशन ऐसे यूज़ नहीं करते, तब हम क्या करते हैं, आप आई जस्ट सिलेक्ट ट्रिम कमांड, हियर यू हैव ऑप्शंस की कीप ट्रिम एंटिटी एज कंस्ट्रक्शन लाइन, कि आपकी ट्रिम तो हो जाएगा, वो कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देगा आपको। इग्नोर ट्रिमिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, अगर आपको बाय डिफॉल्ट आपने कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री को भी ट्रिम कर दोगे तभी कभी कभी क्या होता है कि वो आपको अंडर डिफाइन में लेके चला जाता है।
ठीक है। तो आप अगर उसको भी इग्नोर करना है तो आप ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो, इग्नोर कंस्ट्रक्शन लाइन ज्योमेट्रीज को। देन यू जस्ट गो एंड सेलेक्ट ए ट्रिम ऑप्शन कि आपको किस किस को ट्रिम करना है। पावर ट्रिम में गया, मुझे इससे ट्रिम करना है, इससे भी ट्रिम करना है, इससे भी ट्रिम करना है, तो आपको वो कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कर देगा और वो आपको अंडर डिफाइन में भी नहीं क्रिएट करेगा। यू कैन एग्जिट फ्रॉम हियर और कैंसिल द कमांड। दिस ऑप्शन फॉर द एग्जिट, आप एग्जिट यहाँ से भी कर सकते हो कमांड से और यहाँ से भी कर सकते हो। और अगर कोई कमांड कैंसिल करनी हो तो आप कैंसिल यहाँ से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने रेक्टेंगल कमांड ली, मुझे कैंसिल करनी है, मैंने कैंसिल पर क्लिक कर दिया, वो आपको स्केच से बाहर निकाल देगा, डिस्कार्ड कर देगा कमांड को, ठीक है। तो उसने वो कमांड से यानी उस स्केच से ही आपको बाहर रिमूव कर दिया है, क्योंकि वो स्केच को ही एग्जिट या कैंसिल कर देगा आपके। तो आप एग्जिट और कैंसिल आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। हमेशा एग्जिट पे क्लिक करना है, कैंसिल पे नहीं करना। अगर कैंसिल कर दोगे तो जो भी आपने स्केच में क्रिएट किया होगा वो पूरा स्केच आपका रिमूव हो जाएगा। देन अदर ऑप्शन ऑफ ट्रिम, लाइक मुझे कुछ वर्टिकल लाइन बनानी है, वैसे तो कुछ ज़्यादा स्पेशली कुछ यूज़ आनी नहीं है ये ऑप्शंस, फिर भी एक बार चेक कर लो। लाइक मैंने कुछ लाइंस बनाई, फिर मुझे वर्टिकल लाइन बनानी है, ठीक है। ट्रिम में गया, ट्रिम अवे इनसाइड, यानी बाउंड्री के अंदर ट्रिम करेगा, ट्रिम अवे आउटसाइड यानी बाउंड्री के बाहर करेगा। पहले दो सिलेक्शंस आपके बाउंड्री होते हैं, पहले दो सिलेक्शन आपके बाउंड्री बनते हैं, देन आप ट्रिम करते हो। अभी अवे इनसाइड है यानी अंदर ही ट्रिम करेगा। अगर मैं बाहर भी क्लिक करूंगा तो भी अंदर ट्रिम करेगा, और अंदर क्लिक करूंगा तब भी अंदर ही ट्रिम करेगा, ओके। बट इशू क्या है कि अगर जो आपने दो सिलेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल दिए वो उसे ही बाउंड्री एज्यूम करता है, उसके अंदर जितनी भी चाहे लाइन बनी हो वो उसे एज ए पोर्शन या एज ए लाइन ट्रीट नहीं करता है। तो आप अगर उसको एक पर्टिकुलर पोर्शन ही रिमूव करना है अंदर का तो वो उसे ट्रीट नहीं करेगा, सिर्फ वो बाउंड्रीज को ही ट्रीट करेगा। बस वो ऐसे सेफ्टी पर्पस हम यूज़ करते हैं कि इसके अंदर ही ट्रिम करना है या इसके बाहर ही ट्रिम करना है, इसलिए ट्रिम अवे इनसाइड या ट्रिम अवे आउटसाइड यूज़ होती हैं। मैंने मोस्टली कोई इंडस्ट्री में ऐसा कुछ देखा नहीं यूज़ होते हुए ट्रिम अवे इनसाइड ट्रिम अवे आउटसाइड, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं इसको यूज़ करने की। आपके मोस्टली यूज़ होते हैं पावर ट्रिम और ट्रिम टू क्लोजेस। द नेक्स्ट ऑप्शन इज कॉर्नर। अगर मैंने कोई एंटिटीज क्रिएट किए हैं, आई जस्ट सिलेक्ट अ कॉर्नर, मैंने इस एंटिटी के नीचे वाले पोर्शन पे क्लिक किया और इस एंटिटी के ऊपर वाले पोर्शन पे क्लिक किया, तो जहाँ पे आपको कॉर्नर क्रिएट हो रहा है वहाँ तक एंटिटी रखेगा, बाकी की एंटिटीज़ को रिमूव कर देता है या कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं अनचेक कर दूँ तो रिमूव कर देगा, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और बाकी की एंटिटीज़ को वो रिमूव कर देता है। वापस ट्रिम, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्ट किया, बाकी की चीज़ों को रिमूव कर देगा, यानी कॉर्नर ही क्रिएट करेगा। इसका काम है कॉर्नर क्रिएट करना। इफ़ यू मेक एनी एंटिटी विच आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कि आपके कुछ एंटिटी जो इंटरसेक्ट नहीं हो रही, ऐसे केस में अगर आप कॉर्नर यूज़ करते हो तो वो क्या करता है, वो कॉर्नर क्रिएट करके देगा आपका पॉसिबल। अगर वो नॉन पैरेलल लाइन है तो, अगर पैरेलल लाइन है तो वो ये कमांड आपको फेल बता देगा। सो दिस इज ऑल द कमांड, स्केच टूल कमांड। कन्वर्ट एंटिटी, ये आपको 3D में हम यूज़ करेंगे, तब हम देखेंगे। ऑफसेट एंटिटी, ओके, ऑफसेट एंटिटी भी अच्छा यूज़ होता है आपके कमांड के लिए, ठीक है। आप एज ए एडवांस ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो कि लाइक आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, स्लॉट है, रेक्टेंगल है, या डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। तो बाय डिफॉल्ट ऐसे ऑप्शंस आपको गिवन क्यों होते हैं, क्योंकि मोस्टली यूज़ होते हैं रेक्टेंगल, सर्कल या स्लॉट वगैरह। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो डिफॉल्टली यूज़ होती है तो आपको डायरेक्ट गिवन है कि उसमें रिलेशन पहले से एट मिनिमम डायमेंशन से आप डिफाइन कर सकते हो उन एंटिटीज़ को। लाइक मुझे स्लॉट क्रिएट करना है, स्ट्रेट स्लॉट क्रिएट करना है, तो इसलिए आपने स्लॉट क्रिएट कर दिया, मिनिमम डायमेंशन से आप डिफाइन कर लोगे। जैसे मैंने पहले लेंथ प्रोवाइड की, देन दूसरा मैंने आर्क प्रोवाइड किया, तो ऑटोमेटिकली मेरा ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया है। ऑफसेट एंटिटी, जैसे मैंने ये स्प्लाइन क्रिएट किया, आई जस्ट सिलेक्ट अ ऑफसेट एंटिटी, सिलेक्ट अ स्प्लाइन, तो वो ऑफसेट क्रिएट करके देता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ, यानी रिपीट करके देता है। अगर क्लोज कॉन्टूर है, लाइक ओके, व्हेन आई सिलेक्ट अ क्लोज कॉन्टूर, देन वो आपको इनवर्ट या आउटवर्ड के लिए पूछेगा कि अंदर ऑफसेट करना है या बाहर ऑफसेट करना है आपको, ठीक है। अगर आप सिंगल एंटिटी सिलेक्ट करते हो तो आपको साइड पूछता है, कौन सी साइड आपको ऑफसेट करना है। इफ़ यू सिलेक्ट रिवर्स, तो आपको दूसरी साइड आपको ऑफसेट करके दिखाएगा, रिवर्स यानी प्रीव्यू आपको शो कर रहा है, ठीक है। बट जहाँ पे आप माउस क्लिक करोगे, जो
जिस साइड में आप माउस से क्लिक करोगे वो उसी साइड में आपको ऑफसेट क्रिएट करके देगा, चाहे वो प्रीव्यू कोई भी साइड शो करता हो। अगर आपने ग्रीन चेक पे क्लिक किया डिफॉल्टली ग्रीन चेक पे, देन प्रीव्यू जहाँ पे शो करेगा, शो हो रहा होगा वहीं पे वो क्रिएट करके देगा। लाइक मैंने फिलहाल माउस से क्लिक किया कि मुझे इधर क्रिएट करना, तो इधर क्रिएट हो गया। आई जस्ट सिलेक्ट ऑफसेट अगेन, मैंने प्रीव्यू के अकॉर्डिंग ओके क्लिक कर दिया, तो प्रीव्यू के अकॉर्डिंग क्रिएट कर दिया। यानी अगर फर्स्ट ऑफ ऑल वो माउस ऑपरेशन एज्यूम करता है एज ए फाइनल। ओके, अगर आप माउस से क्लिक नहीं कर रहे हो देन व्हेन यू क्लिक ग्रीन चेक, तो जैसे प्रीव्यू दिख रहा होगा वैसे ही ऑफसेट करके दे देगा। सिलेक्ट चेन, डैट मीन्स कि वो मल्टीपल एंटिटीज यानी डिफरेंट एंटिटीज, लाइक मैंने 1 2 3 लाइन मैंने क्रिएट की, सिलेक्ट की। ऑफसेट में गया, एक लाइन को सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट चेन में वो कंटिन्यूस लाइन ये जो कनेक्टेड है वो एक साथ सिलेक्ट कर लेगा। अगर सिलेक्ट चेन को अनचेक कर दोगे तो सिंगल लाइन को एज्यूम करेगा। ओके, बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में अगर आपको ऑफसेट करना है तो बाई डायरेक्शनल यूज कर सकता है। एंड कैप, अगर कैप को एंडिंग में आपको कवर करना है विद द हेल्प ऑफ आर्क और स्पैन, आप दोनों एंड पे सेम ही यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट नहीं कर सकते। एक साइड आर्क एक साइड लाइन, वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। या तो आर्क यूज़ कर लो या लाइन यूज़ कर लो दोनों एंड पे। बेस ज्योमेट्री, अब आपने ओके कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 3 लाइन क्रिएट हो रही है, तो ये एक सिंगल क्लोज कॉन्टूर नहीं है। ठीक है, सिंगल क्लोज कॉन्टूर नहीं है। तो अगर आपको सिंगल क्लोज कॉन्टूर क्रिएट करना हो तो आप कैसे क्रिएट करोगे? जस्ट सिलेक्ट योर ऑफसेट एंटिटी, सिलेक्ट योर आर्क एंड सिलेक्ट कि अगर आपको बेस ज्योमेट्री को कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना है तो बेस ज्योमेट्री को कंस्ट्रक्शन में कर लो, ऑफसेट एंटिटी को कंस्ट्रक्शन में करना है तो उसको भी कर सकते हो। मैंने ऑफसेट को अनचेक किया, सिर्फ बेस ज्योमेट्री को कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करके ओके कर दिया, तो वो बेस ज्योमेट्री को डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देगा। ओके, सो दिस वे यू कैन क्रिएट योर this way you can use your offset command. Okay, then mirror entity। ठीक है, अगर आपको मिरर यूज करना है मिरर यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस मिरर, सेम एज योर रियल मिरर, वैसे ही रियल मिरर जैसे ही बिहेव करता है सेम टू सेम, कि आपने कोई रेफरेंस एंटिटी सेलेक्ट करनी है देन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस एंटिटी के अबाउट सेम डिस्टेंस पे ही रिफ्लेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका डिफाइन है तो रेफरेंस मिरर ऑब्जेक्ट भी डिफाइन होगा। एंटिटी टू बी मिरर, क्या क्या आपको मिरर करना है मैंने वो सिलेक्ट किया, किसके अबाउट मुझे मिरर करना है मैंने रेफरेंस सेलेक्ट किया। ठीक है, तो आपका एज इट इज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है अदर साइड। अगर आपने सोर्स ऑब्जेक्ट को डिफाइन करके रखा होगा या कर रहे हो तो आपका मिरर ऑब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली डिफाइन होगा ही होगा। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट किया, ये प्रोवाइड किया डायमेंशंस एंड ओके, मैंने ये सिलेक्ट किया, ओरिजिन सेलेक्ट किया और कोलिनियर कर दिया या कॉन्सिडेंट कर दिया। जब लाइन और पॉइंट कॉन्सिडेंट करते हो तो वो लाइन पे पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तो इसलिए कोई फिक्स नहीं होता। जब 2 पॉइंट को कॉन्सिडेंट करते हो तो ऑफकोर्स दोनों पॉइंट एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं। जब आपका रियल ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा तब आपका मिरर ऑब्जेक्ट भी डिफाइन होगा। रियल ऑब्जेक्ट अगर अंडर डिफाइन है तो मिरर भी अंडर डिफाइन ही होगा। अगर इसकी डायमेंशन चेंज करोगे तो वो भी रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। अगर मुझे 20 करना है तो नियर बाय वो भी 20 आ जाएगा। सो दिस वे यू कैन यूज योर मिरर कमांड। ओके, पैटर्न मैं प्रेफर करता हूँ पैटर्न आपके 3D में एज कम्पेयर टू स्केच। आप यूज़ कर सकते हो कि आपने कोई ऑब्जेक्ट को एज ए रिपीटेड वे में रिपीट करना है, देन यू जस्ट यूज योर पैटर्न। ठीक है, मैंने इसको डिफाइन कर 82, इसको डिफाइन कर दिया 82 और सिलेक्ट योर लीनियर पैटर्न। ओके, मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर लीनियर स्केच पैटर्न आप यूज़ कर रहे हो तो पहले एंटिटी सेलेक्ट करो फिर कमांड सेलेक्ट करो, तो एक एक करके एंटिटी सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, डायमेंशंस प्रोवाइड कर दो उनके पीछे, ये सेंटर टू सेंटर पिकअप करता है और कितनी एंटिटी से इंस्टेंस क्रिएट करना आप इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। अगर कोई डिग्री पे क्रिएट करना तो आप डिग्री भी दे सकते हो, डिग्री भी दे सकते हो। ओके, एंड अगर वाई डायरेक्शन में भी क्रिएट करना है तो वाई डायरेक्शन में भी क्रिएट कर सकते हो। वाई के बीच में भी आप इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, डिग्री दे सकते हो, डायमेंशन दे सकते हो, एंगल डिफाइन कर सकते हो एंड ओके, तो ऑटोमेटिकली आपका मिरर्स यानी लीनियर पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। तो लीनियर पैटर्न यानी एक लीनियर वे में हॉरिजॉन्टली वर्टिकली उस वे में आपका क्रिएट करके देता है ऑब्जेक्ट। सर्कुलर पैटर्न यानी एक सेंटर पॉइंट के अबाव पैटर्न क्रिएट करके देगा। आई जस्ट मेक अ सर्कल हियर, मेक अनदर सर्कल ऑन दिस पॉइंट
The bigger circle make as a construction for reference. Then what I do, I just select a circular sketch, select a entity, select a point. ऑटोमेटिकली उसने सेंटर पिक कर लिया और जितनी एंटिटीज आपको क्रिएट करनी उतनी इंस्टेंस आप क्रिएट कर सकते हो. सो दिस वे यू कैन क्रिएट योर सर्कुलर पैटर्न ऑल्सो. ये कुछ आपके टूल्स हैं, मूव एंड कॉपी, स्केल, स्ट्रेच. ज़्यादा कुछ यूज़ में आते नहीं कभी भी, बाकी आप खुद एक्सप्लोर करके देख सकते हो कि किसी एंटिटी को मूव करना है. अगर डिफाइन एंटिटी को आप मूव करोगे तो अंडर डिफाइन में चली जाएगी. कॉपी यूज़ कर सकते हो, नहीं कॉपी आप क्रिएट करके फिर डिफाइन करना पड़ता है, तो फिर देन रोटेट एंड स्केल तो ज़्यादा यूज़ में रहते नहीं आपको. डिलीट और डिस्प्ले में आपको पहले ही बता चुका हूँ आपको कमांड. देन रिपेयर स्केच. हाउ वी कैन यूज़ द रिपेयर स्केच. इफ़ आई क्रिएट अ रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ लाइन, लाइक मैंने रेक्टेंगल आपका ऐसे क्रिएट किया और एंडिंग मैंने क्लोज नहीं किया, ठीक है. आई जस्ट मेक अनदर लाइन एट दिस पॉइंट. ओके, मैंने दूसरी लाइन क्रिएट कर दी और विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट डायमेंशंस मैंने सिर्फ डिफाइन भी कर दिया कि ये मेरा नियर बाई 365 या 356 है, ये 32 है. चेंज करना तो वैल्यू आप चेंज कर सकते हो 350, ठीक है. अब मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा ऑब्जेक्ट पूरा ब्लैक दिख रहा है, यानी डिफाइन होना चाहिए, बट स्टेटस बार आपका अंडर डिफाइन दिखा रहा है, ठीक है. अगर सिंपल रेक्टेंगल है तो ऑफकोर्स 4 कॉर्नर है, आप जूम इन जूम आउट करके चेक कर लोगे इशूज कौन सी कॉर्नर पे है. बट इंडस्ट्री में स्केच या ऑब्जेक्ट इतनी रेक्टेंगल या सर्कल नहीं होते, ठीक है. जब आप वर्क करोगे, आप कर रहे हो तो आपको पता है, नहीं कर रहे हो तो आप जाओगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी चीज़ें. तो ऐसे केस में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि एरर किस रीज़न से है, कि अंडर डिफाइन क्यों आ रहा है बार बार. सो व्हाट आई डू, आई जस्ट सिलेक्ट अ रिपेयर स्केच ऑप्शन. रिपेयर स्केच क्या होता है कि यहाँ पे आप एक वैल्यू टाइप करते हो तो वो उससे छोटी वैल्यू गैप या लाइन फाइंड करके देता है वहाँ पे. फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे 400 टाइप कर दूँ तो यहाँ पे आपकी वो पूरी की पूरी एंटिटी भी आपको इसके अंदर दिखा देगा. तो ऑटोमेटिकली वैसे वो खुद कैलकुलेट भी कर लेता है कि मिनिमम वैल्यू इससे नीचे ही आपको मिलने वाली है, ठीक है. ये मैग्नीफाई ग्लास है, अब क्लोज कर दोगे तो वहाँ पे आपका येलो सर्कल बन के आ जाएगा जहाँ पे आपका इशू है. जैसे मैंने गैप 10 किया तो ऑटोमेटिकली इसने मुझे एरर 2 दिखा दिए, ठीक है. मैग्नीफाई ग्लास से मैं अगर जूम इन जूम आउट करता तो सिर्फ उतना ही एरिया जूम इन होता जो मैग्नीफाई ग्लास के अंदर है, बाहर का एरिया जूम इन जूम आउट नहीं होता. जैसे मैंने इसको डिलीट किया, रिफ्रेश किया तो सिर्फ एक एरर रिमेनिंग बची. इसको भी जूम इन कर लेता हूँ और जूम करके मैं इसको सीधा कनेक्ट कर देता हूँ. और जैसे क्या और रिफ्रेश पे क्लिक किया, आपको कोई भी प्रॉब्लम अभी रिमेनिंग नहीं बचा, तो फुली डिफाइंड एज इट इज़ हो गया. तो इस विद द हेल्प ऑफ रिपेयर स्केच आप अपनी एंटिटीज़ को रिपेयर भी कर सकते हो. ये गैप फाइंड कर सकते हो कि इतने एंटिटी से स्मॉलर वैल्यू क्या क्या है इसमें अवेलेबल है. अगर ऑब्जेक्ट आपको क्लोज एंटिटी है तो बाय डिफॉल्ट शेडेड कलर में दिखता है, ठीक है. अगर ये ऑब्जेक्ट शेडेड स्केच कंट्रोल को अनचेक कर दोगे तो शेडेड नहीं दिखेगा. तो ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर ये ऑप्शन आपका चेक रहेगा कि आपको ऑब्जेक्ट क्लोज कंट्रोल है या नहीं है. इंस्टेंस 2D. इफ आई सेलेक्ट इंस्टेंस 2D, इंस्टेंस 2D कैसे बिहेव करता है. जैसे आई जस्ट सेलेक्ट इंस्टेंस 2D, मैंने 350 पे क्लिक किया तो 350 के दोनों साइड आपको एक ब्लू बॉल बन के आ रही है. जैसे ब्लू बॉल पे क्लिक करूँगा तो इंस्टेंटली मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ कि मुझे ये 300 बनानी है, मुझे 365 को एक्चुअली मुझे नियर बाई 400 बनाना है, तो 400 पे लेके गया तो 400 बन गई. अगर इंस्टेंस 2D बंद होगा तो जैसे आप डायमेंशन पे क्लिक करते हो, ठीक है, मूव ऑन करते हो, क्लिक करते हो, येलो बॉल नहीं आते और आप डायमेंशन इंस्टेंटली चेंज नहीं कर सकते. आपको चेंज करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ेगा. जब इंस्टेंस 2D ऑन होता है तो आप दोनों वे यूज़ कर सकते हो. डायमेंशन पे डबल क्लिक करके वैल्यू चेंज कर सकते हो और विद द हेल्प ऑफ स्लाइडर भी आप चेंज कर सकते हो वैल्यू को कि मुझे ये 500 बनाना है. तो ऐसे भी चीज़ें वर्क करती हैं. देन रैपिड स्केच हम 3D के टाइम पे देखेंगे. क्विक स्नैप. इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, हाउ आई कैन डू दैट. कि मुझे पहले लाइन पे जाना पड़ेगा, उसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन मैं लाइन क्रिएट करना स्टार्ट करूँगा. बट व्हेन आई सेलेक्ट अ क्विक स्नैप तो पहले आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो कि आपको स्नैपिंग क्या करनी है. सेंटर पॉइंट करना है, मिड पॉइंट करना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट करना है, इंटरसेक्ट पॉइंट करना है. जैसे मुझे मिड पॉइंट करना है. मिड पॉइंट किस लाइन का करना है, बस उस लाइन के ऊपर से होवर कर लो माउस को. जैसे होवर कर लोगे देन आप कहीं भी क्लिक करो ऑटोमेटिकली उसका सेंटर पॉइंट पिक करेगा, तो आपको उस पॉइंट पे जाके क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. तो ऐसे भी आप चीज़ें करके आप अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो. ओके, सो दिस वे यू कैन यूज योर क्विक स्नैप. सो दिस इज ऑल दिस थिंग आर अंडर योर स्केच टूल्स. शॉर्टकट की बात करते हैं. ऑफकोर्स
if you are working in industry, you need to make your project under guideline, under a tight guideline, tight timeline. Okay, so आपको वो एक स्पेसिफिक टाइमलाइन पे क्रिएट करके देना ही पड़ता है. देन इफ यू नो दिस शॉर्टकट, देन यू कैन मेक द ऑब्जेक्ट फास्टर इन इजी वे. इफ यू डिड नॉट नो दिस शॉर्टकट, देन यू हैव टू मेक एनी सिंपल ऑब्जेक्ट एज ए मैनुअल वे और एज ए नॉर्मल वे. तो जो भी आप कमांड ऊपर सेलेक्ट कर रहे हो वो सारी कमांड आप विद द हेल्प ऑफ माउस गेस्चर भी यूज़ कर सकते हो. माउस गेस्चर यूज़ करने के लिए आपको सिंपली आपका माउस का राइट क्लिक प्रेस करके रखना पड़ेगा. जैसे आप राइट क्लिक प्रेस करके रखोगे, आपको रिलीज नहीं करना है, प्रेस करके रखना है माउस का राइट क्लिक एंड देन माउस को मूव करना है प्रेस करने के साथ ही. तो आपको कुछ शॉर्टकट दिखेंगे. ठीक है, आप सीधा उस शॉर्टकट पे जाओगे तो वो आप कमांड सेलेक्ट कर सकते हो. अगर उससे पहले अपने राइट क्लिक आपने रिलीज कर दिया तो आपको वो कमांड सेलेक्ट नहीं होगा. जैसे मैंने सर्कल के ऊपर गया तो वो कमांड सेलेक्ट भी हो गया और वो माउस गेस्चर आपका हाइड भी हो गया. अब मैं अपना कमांड यूज़ कर सकता हूँ. ऊपर की तरफ गया तो स्मार्ट डायमेंशन है, सेलेक्ट डायमेंशन. एवरी टाइम मुझे ऊपर जाके अब स्मार्ट डायमेंशन या कमांड सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. मैं अपने कमांड यहीं से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ. और यू कैन यूज योर कमांड विद द हेल्प ऑफ योर कीबोर्ड ऑल्सो. अगर इफ यू आर नो अबाउट AutoCAD और 2D सॉफ्टवेयर इन ड्राफ्ट साइड लाइक, देन यू हैव एन हैबिट टू यूज अ कीबोर्ड. तो आप अपना कीबोर्ड भी सेट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने L प्रेस किया, लाइन कमांड एक्टिवेट होगी. C यूज़ किया तो आपको कट हो जाता है. तो ये आप कमांड भी यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. ओके, यूज़ कैसे करते हैं ये चीज़ें मैंने अभी बताई. सेट कैसे करते हैं ये शॉर्टकट वगैरह. अपने कमांड मैनेजर में ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करो, गो टू योर कस्टमाइज ऑप्शन. आप ऐसे भी कस्टमाइज में जा सकते हो या आपकी सेटिंग्स के बाजू में आपका स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन है कस्टमाइज, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो. कस्टमाइज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो पहला आप टैब यूज़ कर सकते हो कीबोर्ड टैब. कीबोर्ड टैब में आपके सारे के सारे कमांड अवेलेबल है. सारे कमांड की लिस्ट है जो भी आपके सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है. हर एक कमांड के आगे आप शॉर्टकट सेट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लाइन यूज़ किया, लाइन मैंने टाइप किया तो लाइन के आगे L पहले से प्रेस है तो विद द हेल्प ऑफ L मैं लाइन यूज़ कर सकता हूँ. अगर मुझे दूसरा शॉर्टकट यूज़ करना है मैं दूसरा भी सेट कर सकता हूँ, जिससे Ctrl Alt A. मैंने एक और कमांड यूज़ किया सर्कल के आगे मुझे C टाइप करना है. जैसे मैंने C प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली वो मुझे बता रहा है C की इज ऑलरेडी असाइंड टू एक्सपांड एंड कोलैप्स ट्री. डू यू वांट टू चेंज द असाइनमेंट टू टूल सर्कल C. अगर येस करोगे तो वो C आपको सर्कल में सेट हो जाएगा और जो कमांड एक्सपांड और कोलैप्स C वहाँ से C रिमूव हो जाएगा. अगर आप नो करोगे तो आपको वो कमांड पहले एक्सपांड और कोलैप्स पे ही वर्क करेगा, C पे सेट नहीं होगा. तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हो. जैसे मैंने कमांड सेट किया और ओके किया, Ctrl Alt और L प्रेस किया, या मैंने जो सेट किया था वो कमांड जैसे प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगा. कस्टमाइज आप वापस चेक कर सकते हो कि मैंने क्या सेट किया था लाइन के आगे. तो मैंने कुछ ऐसा सेट कर दिया जो मुझे खुद को याद नहीं है. ओके, सो दैट वाज Ctrl Alt L. बाकी आप रिमूव भी कर सकते हो कि कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई चीज़ें तो आप रिमूव कर सकते हो कमांड को. ठीक है, माउस गेस्चर जो मैंने अभी आपको यूज़ करके दिखाया, मैक्सिमम आप 12 शॉर्टकट सेट कर सकते हो अपने माउस में एट पार्ट लेवल, स्केच लेवल, असेंबली लेवल एंड ड्राइंग लेवल. अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो. जैसे स्केच लेवल की बात करूँ, मुझे सर्कल यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो अपना कमांड टाइप करो, सर्च करो. लाइक मुझे लाइन स्प्लाइन कुछ भी ऐड करना तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ. लाइक मुझे लाइन ऐड करना है फिर से तो मैंने लाइन यहाँ टाइप कर एंटर कर दिया तो लाइन यहाँ पे आ गया. तो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो आप पूरा का पूरा माउस गेस्चर. पावर लेवल पे आपका माउस गेस्चर ये है, असेंबली में ये है, ड्राइंग पे ये. तो अपने अकॉर्डिंग हर एक लेवल पे यानी हर एक मॉडल में अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो. ओके, तो माउस गेस्चर और कीबोर्ड सेटिंग्स आप यहाँ से सेट कर सकते हो. देन यू हैव अदर ऑप्शन दैट वाज शॉर्टकट बार. शॉर्टकट बार व्हेन यू प्रेसिंग एस की फ्रॉम योर कीबोर्ड देन शॉर्टकट बार अराइव, जिसमें आपके कुछ टूल्स रहते हैं स्केचिंग के. आप अपने अकॉर्डिंग सेट ड्राइंग लेवल के टूल देख सकते हो, असेंबली, पार्ट और स्केच लेवल पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो. अगर कोई कमांड आपको चाहिए, जैसे मुझे नॉर्मल टू रिक्वायरमेंट है तो नॉर्मल टू मैंने इसमें प्रेस पुट अप पुल कर दिया. ठीक है, या मुझे नॉर्मल टू यहाँ नहीं हेड्स अप टूल बार में चाहिए, मैंने यहाँ पर डाल दिया. अपने अकॉर्डिंग कहीं भी सेट कर सकते हो. और जस्ट क्लिक ओके. व्हेन यू क्लिक ओके, व्हेन यू प्रेस एस की फ्रॉम योर कीबोर्ड देन शॉर्टकट बार अराइव.
when you hold your right key from your mouse and move your mouse, then you can see the mouse gesture. When you press L key or other shortcut from your keyboard, then the shortcut command arrive. तो दिस वे आप अपने शॉर्टकट वगैरह अपना यूज़ कर सकते हो. तो ये कुछ वे होते हैं जहाँ जैसे आप शॉर्टकट वगैरह अपना यूज़ कर सकते हो. सो होप इज इट क्लियर फॉर यू कि अगर आप कोई कमांड में वर्क कर रहे हो, लाइक मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया, आपने गलती से एग्जिट कर दिया, देन यू डिड नॉट वांट टू सिलेक्ट अगेन फ्रंट प्लेन एंड मेक सिलेक्ट स्केच कमांड. अगर आपने वापस सेलेक्ट किया तो वो नया स्केच क्रिएट करके देगा, लाइक स्केच 2. तो आपको क्या करना है, स्केच 3 पे ही वापस क्लिक करके एडिट स्केच करना है. व्हेन यू क्लिक ऑन एडिट स्केच, दैट मीन्स आप क्रिएट करना है, नया क्रिएट कर रहे हो, एडिट कर रहे हो उसी एग्जिस्टिंग को. ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो. तो स्केच टूल्स हमने कवर कर लिया है. सो की टेक्स अवे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस रिगार्डिंग द यूजर इंटरफेस. Like by default all the plane are hide. You can unhide a specific plane or all plane, whatever you need. Fundamental of sketching, under that we see the defined, under defined, fully defined, over defined, definition of all. Then we go through the sketch tools, some basic tools, some advanced tools like offset and all. So this is, we summarize our thing. That's all from my side. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. जैसे हमने स्केचिंग में देखा, स्केचिंग की टर्मिनोलॉजीज देखी, ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वॉल्यूम कैसे क्रिएट करते हैं. सो कंटिन्यू सीरीज देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा. अगर कोई डाउट वगैरह हो आपके तो मे बी मैं ट्राई करूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके कवर कर लूँ. ओके, और सो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू ऑल.